Hello my shining stars, welcome back to the galaxy of electrical engineering. So in this video we are going to discuss about the part 3 of performance of transmission line. हमने already part 1 और part 2 में कुछ previous year important gate models को discuss कर लिया है. मैं आपको I button पे उसका link provide कर दूंगी. So I request you to please have a look once. So let's start the video. So this is our next question. A cable has the following characteristics. L is equals to 0.201 microhenry per meter and C is equals to 196.2 picofarad per meter. The velocity of wave propagation through the cable is dash. So हमें यहाँ velocity of wave propagation find out करना है. So how you can be able to find out? हमारे पास एक formula है in order to find out the velocity of wave propagation. So it's going to be V is equals to 1 by under root LC. So this is the formula of velocity of wave propagation. L का भी value दिया गया है, C का भी value दिया गया है. So simply you have to substitute here value of L and C in this formula. So V is equals to 1 divided by under root L का वैल्यू क्या दिया गया है? It's 0.201 माइक्रो. So माइक्रो मीन्स into 10 to the power -6 into C का वैल्यू 196.2 pico. So pico is 10 to the power -12. So जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा and that result is going to be V is equals to 159.24 मीटर पर माइक्रोसेकेंड्स. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी अवर रिजल्ट. सो लेट्स चेक कि किस ऑप्शन में हमें ये रिजल्ट मिल रहा है. सो इट्स इन ऑप्शन नंबर बी. सो ऑप्शन नंबर बी इज ओनली करेक्ट. दिस इज माइक्रो. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर बी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. So moving towards next question. So this is our next question. A 220 kV 20 kilometer long 3-phase transmission line has the following ABCD constants. So A is equals to D is equals to 0.96 at an angle of 3 degree. B is equals to 55 at an angle of 65 degree per phase. C is equals to 0.5 into 10 to the power -4 at an angle of 90 degree Siemens per phase. Its correct charging current per phase is dash. So options are 11 by root 3 ampere, 11 into root 3 ampere, 11 ampere and 220 divided by root 3 ampere. So these are the options. So हमें इसमें से find out करना है charging current का value. But charging current होता क्या है? जब load current का value या फिर receiving end का करंट का वैल्यू 0 रहेगा. IR का वैल्यू, इफ IR का वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, सो जो सेंडिंग एंड में करंट फ्लो होगा दैट इज गोइंग टू बी द चार्जिंग करंट ओनली. सो जब IR का वैल्यू 0 रहेगा देयर विल बी ओनली सेंडिंग एंड करंट. सो IS का वैल्यू ही प्रेजेंट रहेगा दैट इज इक्वल्स टू IC. सो सेंडिंग एंड करंट इज नथिंग बट चार्जिंग करंट वैल्यू ओनली when the receiving end current is equals to 0. ठीक है. सो आई होप आपको ये चार्जिंग करंट के बारे में समझ में आया होगा. सो लेट्स राइट हियर मैथमेटिकल इक्वेशंस फॉर ABCD पैरामीटर्स. सो जो दो इक्वेशंस है हमारे पास दैट आर VS is equals to A equivalent VR plus B equivalent IR. Similarly, IS is equals to C equivalent VR plus D equivalent IR. So ऐसे दो इक्वेशंस हमारे पास है. बट इन दोनों इक्वेशन में से where is IS value? So IS value is here. That means you have to consider this equation number 2. ठीक है. इन दोनों इक्वेशन में से आप इक्वेशन नंबर 2 को सिलेक्ट कीजिए. सो IR का तो वैल्यू 0 हो जाएगा. आप इसे 0 कंसिडर कीजिए बिकॉज इन ऑर्डर टू फाइंड आउट चार्जिंग करंट रिसीविंग एंड करंट का वैल्यू 0 होना चाहिए.
So I'll just substitute all the values here. Is equals to C equivalent VR plus 0, because IR का वैल्यू 0 हो जाएगा, दैट्स वाई 0 ओनली. सो IS इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है? C इक्विवेलेंट का वैल्यू इज नथिंग बट वी हैव हियर 0.5 into 10 to the power minus 4. So I'll just substitute here value 0.5 into 10 to the power minus 4 into VR. आपको फेज का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बिकॉज हमें चार्जिंग करंट ऑफ फेज ही फाइंड आउट करना था. सो यू हैव टू राइट हियर VR फेज वैल्यू. सो लाइन टू लाइन वैल्यू कितना दिया गया है? 220 kV. सो 220 kV अगर आप फेज में कन्वर्ट करोगे देन यू आर गोइंग टू गेट 220 डिवाइडेड बाय √3. इट इज इन किलो. ठीक है, सो आई विल जस्ट राइट हियर किलो एम्पियर. सो नाउ here what I'll do, I'll just replace this sending end current because हमें charging current find out करना है ना. So charging current is nothing but sending end current only. So IS is equals to IC is equals to, जब आप इसे solve करेंगे then what you are going to get? You are going to get one result and that result is going to be 11 by √3 amperes. ठीक है. So this is the value for charging current. So let's see कि किस ऑप्शन में हमें ये दिख रहा है. So it's in option number A. So option number A is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. So moving towards next question. So this is our next question. ये एक कॉमन डेटा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों में भी यही डेटा यूज होने वाला है. So this is our 8th question. So the question is a 66 kV 3-phase 50 Hz 150 km long overhead transmission line is open circuited at receiving end. मतलब receiving end में सर्किट हमारा ओपन किया गया है. Each conductor has a resistance of 0.25 ohms per kilometer. Inductive reactance will be 0.5 ohms per kilometer. Capacitive admittance to neutral of 0.04 into 10 to the power minus 4 Siemens per kilometer. The nominal pi equivalent circuit is dash. So यहाँ जितना भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उसे हम पहले लिख लेंगे. ठीक है. सो गिवन में क्या क्या दिया गया है? गिवन में दिया गया है कि लाइन जो है वो 66 kV की लाइन है. ठीक है. सो 66 kV की लाइन आई विल जस्ट राइट हियर 66 kV. उसके बाद में इट्स अ 3-phase 50 Hz. लेंथ ऑफ द लाइन इज L is equals to 150 किलोमीटर. दिस इज लेंथ ऑफ द लाइन. सिमिलरली यहाँ हमें रेजिस्टेंस दिया गया है. सो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 0.25 ohms पर किलोमीटर. इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया गया है, दैट मीन्स XL का वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 0.5 ohms पर किलोमीटर. फिर उसके बाद में वी हैव बीन गिवन हियर कैपेसिटिव एडमिटेंस का वैल्यू. सो कैपेसिटिव एडमिटेंस का मतलब होता है Y. सो Y का वैल्यू हमें यहाँ दिया गया है. Y इज इक्वल्स टू 0.04 इंटू 10 to the power minus 4 Siemens पर किलोमीटर. ठीक है. और एक इंफॉर्मेशन दिया गया है कि रिसीविंग एंड का सर्किट ओपन किया गया है. दैट मीन्स IR का जो करंट है, IR का करंट वो 0 होने वाला है. ठीक है. सो फ्रॉम दिस डेटा वी हैव टू फाइंड आउट नॉमिनल पाई इक्विवेलेंट सर्किट. सो नॉमिनल पाई इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है? नॉमिनल पाई इक्विवेलेंट सर्किट इज नथिंग बट टोटल सीरीज इम्पिडेंस Z का वैल्यू हमें कंसीडर करना होगा एंड जो एडमिटेंस होगा वो हाफ ऑफ एडमिटेंस हमें यहाँ कंसीडर करना होगा. ठीक है. सो इट्स गोइंग टू बी Y/2 एंड हियर इट्स गोइंग टू बी Y/2 एज वेल. Y/2. ठीक है. सो दिस इज द नॉमिनल पाई इक्विवेलेंट सर्किट. दिस इज nominal pi equivalent
सर्किट। सबसे पहले तो हम इम्पिडेंस का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो Z इज इक्वल्स टू R प्लस जे एक्स एल। ठीक है, सो R प्लस जे एक्स एल का वैल्यू हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं। सो Z इज इक्वल्स टू R का वैल्यू दिया गया है। सो R का वैल्यू कितना है 0.25 प्लस जे 0.5, बट हमें पूरे लाइन का फाइंड आउट करना है। जितना भी किलोमीटर्स में दिया गया है पूरा हमें फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स आपको L से मल्टीप्लाई करना होगा। सो मल्टीप्लाई विथ L एंड हियर ऑल्सो यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ L, ताकि आपको टोटल लाइन इम्पिडेंस का वैल्यू मिल सके। ठीक है, सो टोटल लाइन इम्पिडेंस का वैल्यू क्या आने वाला है? L का वैल्यू कितना है 150 किलोमीटर्स। सो 0.25 प्लस जे 0.5 इंटू 150। ठीक है, सो आप जब मल्टीप्लाई करोगे 150 को 0.25 से और 0.5 से, सो आपको रिजल्ट मिलेगा लाइन इम्पिडेंस का। सो लाइन इम्पिडेंस Z इज इक्वल्स टू 37.5 प्लस जे 75 ओम्स। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लाइन इम्पिडेंस। हमें यहाँ पर किलोमीटर में दिया गया था क्वेश्चन में। आप ध्यान में रखिए कि हमें यहाँ पर किलोमीटर में दिया गया था, तो हमने जितना भी किलोमीटर दिया गया है 150 किलोमीटर, सो उसके लिए हमने टोटल लाइन इम्पिडेंस का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, सो लाइन इम्पिडेंस का वैल्यू कितना आया है? लाइन इम्पिडेंस का वैल्यू इज 37.5 प्लस जे 75 ओम्स। Now it's time to find out y by 2 का वैल्यू। सो y का वैल्यू हमें दिया गया है। ठीक है, एडमिटेंस इज इक्वल्स टू y बाय 2। सो y का वैल्यू कितना दिया गया है? y का वैल्यू इज j 0.04 इंटू 10 टू द पावर -4 सीमेंस पर किलोमीटर में दिया गया है। ठीक है, पर किलोमीटर, बट हमें टोटल कंसीडर करना होगा। सो टोटल कंसीडर करना है मतलब आपको L से मल्टीप्लाई करना होगा। सो L का वैल्यू कितना दिया गया है? L का वैल्यू इज 150 किलोमीटर। सो दिस इज पर किलोमीटर वैल्यू, बट वी हैव टू कंसीडर टोटल एडमिटेंस। सो टोटल एडमिटेंस इज गोइंग टू बी J 0.04 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 150। सो टोटल एडमिटेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा? y बाय 2 का वैल्यू इज इक्वल्स टू J 3 इंटू 10 टू द पावर -4 सीमेंस। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y बाय 2। हमें z का भी वैल्यू मिल गया है और हमें y बाय 2 का भी वैल्यू मिल गया है। तो अभी मैं यहाँ नॉमिनल पाई इक्विवेलेंट नेटवर्क को ड्रॉ करती हूँ। So it's going to be, this is Z. So Z का वैल्यू कितना आया है? Z का वैल्यू इज 37.5 प्लस J 75 ओम्स। सिमिलरली y बाई 2 का वैल्यू। सो y बाई 2 का वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया है। सो y बाई 2 इज इक्वल्स टू J 3 इंटू 10 टू द पावर -4। Similarly here also y by 2 is equals to J 3 into 10 to the power -4. So this is the nominal pi circuit. So let's check कि ऐसा हमें कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, so 37.5 plus J75, so it's in option number A. So option number A is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसमें भी हम इसी डेटा को यूज़ करेंगे ताकि हमें जो भी पूछा गया है उसका रिजल्ट हम फाइंड आउट कर सकें। सो मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9. So question number 9 is a 66 kV 3-phase 50 Hz 150 km long overhead transmission line is open circuited at the receiving end. Each conductor has a resistance of 0.25 ohms per kilometer, inductive reactance of 0.5 ohms per kilometer
and capacitive admittance to neutral of 0.04 into 10 to the power minus 4 Siemens per kilometer. The receiving end voltage in kV if sending end voltage is 66 kV will be dashed. So हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट रिसीविंग एंड वोल्टेज. सो वी आर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो वी आर का वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? यहाँ हमें सेंडिंग एंड का वोल्टेज दिया गया है. सो सेंडिंग एंड का वोल्टेज कितना है? तो सेंडिंग एंड इज इक्वल्स टू 66 kV. दिस इज लाइन टू लाइन वोल्टेज. ठीक है. सो अगर आपको लाइन टू लाइन वोल्टेज ना लिखते हुए आपको फेज वोल्टेज लिखना होगा, सो इट्स गोइंग टू बी वी एस इज इक्वल्स टू 66 बाय √3 kV. दिस इज फेज वोल्टेज. दिस इज फेज वोल्टेज. ठीक है. नाउ अगेन व्हाट यू हैव बीन गिवन हियर, यू हैव बीन गिवन कि आई आर का वैल्यू 0 होने वाला है बिकॉज ओपन सर्किट है ना. सो ओपन सर्किट है मतलब रिसीविंग एंड का जो सेक्शन होने वाला है वो ओपन किया गया है. सो अगर रिसीविंग एंड का सेक्शन ओपन होगा देन देयर विल बी आई आर इज इक्वल्स टू 0. सो रिसीविंग एंड करंट इज इक्वल्स टू 0. सो हम अभी ABCD पैरामीटर्स के इक्वेशन का हेल्प लेंगे एंड फ्रॉम दैट वी कैन बी एबल टू फाइंड आउट आवर रिसीविंग एंड वोल्टेज. सो ABCD पैरामीटर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? सो इट्स गोइंग टू बी VS इज इक्वल्स टू A इक्विवेलेंट VR प्लस B इक्विवेलेंट IR and then we have here IS is equals to C equivalent VR plus D equivalent IR. So IR का वैल्यू 0 होने वाला है. ठीक है. So this is equation 1, this is equation 2. So from equation 1 only you can be able to find out VR का वैल्यू. ठीक है. So equation number 1 implies VS is equals to A equivalent VR because IR का तो वैल्यू कितना है? 0 है. So that's why here we have plus 0. So VS is equals to A VR. So from this you can be able to find out VR का वैल्यू. आपको बस VS और A का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा. So as it is a nominal pi network, so nominal pi network का equivalent ABCD पैरामीटर क्या होने वाला है? ठीक है. So equivalent ABCD पैरामीटर for nominal pi network. So ABCD parameters for nominal pi equivalent circuit will be A, B, C and D. हम अभी यहाँ इक्विवेलेंट का वैल्यू फाइंड आउट करने वाले. ठीक है. सो मैं यहाँ आपको डायरेक्टली वैल्यू लिख के दिखाती हूँ कि क्या होने वाला है नॉमिनल पाई इक्विवेलेंट सर्किट के ABCD पैरामीटर. सो A का वैल्यू क्या आने वाला है? A का वैल्यू इज गोइंग टू बी 1 प्लस YZ डिवाइडेड बाई 2. B इक्विवेलेंट का वैल्यू इज गोइंग टू बी Z इंटू 1 प्लस YZ बाय 4. C इक्विवेलेंट का वैल्यू आपको मिलेगा Y एंड D इक्विवेलेंट इज सेम एज दैट ऑफ A इक्विवेलेंट. सो YZ बाय 2. So this is the ABCD parameter for nominal pi equivalent circuit. So A equivalent का वैल्यू क्या है? A equivalent का वैल्यू इज दिस वन. सो आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इन दिस इक्वेशन. यहाँ आप A का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए. VS का भी वैल्यू आपको पता है एंड यू कैन बी एबल टू फाइंड आउट VR का वैल्यू. ठीक है. सो हम अभी यहाँ VR का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो VR इज इक्वल्स टू VS बाय A. सो सबसे पहले तो हम A को फाइंड आउट करेंगे. सो A इज इक्वल्स टू 1 प्लस YZ बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस Y का वैल्यू कितना आया है?
y का वैल्यू जो प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने जो इक्विवेलेंट ABCD पैरामीटर्स फाइंड आउट किया था, y का वैल्यू, सो दैट यू हैव टू राइट हियर, ठीक है। सो हियर आई विल जस्ट राइट हियर yz/2 का वैल्यू, सो टोटल यू आर गोइंग टू गेट 37.5 प्लस j 75 इंटू j 3 इंटू 10 टू द पावर -4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको a का वैल्यू मिलेगा। सो a का वैल्यू इज गोइंग टू बी 0.9775 एट एन एंगल ऑफ 0.659 डिग्री। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। सो आप अभी VR का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सो VR इज इक्वल्स टू VS का वैल्यू कितना है, फेज में लिखना है आपको, ठीक है। सो 66 kV डिवाइडेड बाय √3 होल डिवाइडेड बाय A। सो A का वैल्यू कितना है 0.9775। सो इट्स इन kV। सो VR का जो वैल्यू मिलेगा आपको दैट इज गोइंग टू बी 38.98 kV। So this is the final result for our question. So I hope आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने फाइंड आउट किया है रिसीविंग एंड का वोल्टेज बाय कंसीडरिंग ओपन सर्किट एट रिसीविंग एंड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। सो थैंक यू गाइस।